Yes. Uh, what if one educator could transform not just classrooms? हम ये आज बताने वाले हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो है उसको क्लासरूम तक नहीं बल्कि इससे बियॉन्ड भी लेके जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम सोनल, और वो एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट भी हैं, और बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ उनकी और भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। आज हम उनको अपने शो में वेलकम करेंगे। Or first of all, we are honored to welcome Ma'am Sonal as Thank you. distinguished human development expert, Thank you. specializing in early childhood care and education. With nearly 30 years of experience in education, she has dedicated her life to shaping young minds and empowering educators across the world. She is currently a vice principal, and along with that, she is a renowned global speaker, researcher, teacher trainer, and award winning educationist. She is also creator of an innovative pedagogy skill called Skillogogy. Along with that, ma'am is founder of multiple empowerment pro platforms, including Cosmic Aura and Meta Forces, in impacting thousands of educators and learners worldwide. With over 150 awards, 70 plus speaking engagements, and contribution to international publications and books, her journey reflects purpose, passion, and transformation. Today, we are privileged to hear her story, her vision, and her wisdom on education and human development. Ma'am, Thank you. thank you for joining us. How are you, ma'am? Thank you so much. I'm very well. Thank you. Hope you too. Thank you so much. Thank you. Yes. We will start with our first basic question. Ma'am, please tell something about yourself to my audience, please. You have, I think, good evening, everyone, and thank you for this warm welcome and a warm introduction. So, Shalji ji, you have already introduced me in a wonderful way. So, जैसे जैसे हमारे conversations होंगे, जैसे जैसे हमारे सवालों के जवाब आते जाएंगे, तो अपने आप ही मेरे बारे में धीरे धीरे वो अपने आप ही बाहर निकलता जाएगा. तो rather than मैं अपने बारे में कुछ बात करूं, let the audience understand what is exactly my vision, mission, focus, and how exactly I work and how I have landed up till here. तो अपने आप ही जैसे जैसे आपके सवाल होंगे वैसे वैसे मेरे जवाब होंगे उसी में ही मेरे बारे में अपने आप ही पता चलता जाएगा. सो थैंक यू सो मच. Yes, sure, थैंक यू. ma'am. Yes, yes, sure. Yes, sure. तो हम अपने क्वेश्चंस का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि मैम ने हमें टाइम दिया। मैम, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक़्त में से आपने हमें टाइम दिया, और आज आप हमारी जनरेशन को आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताने वाली हैं। तो थैंक यू. because I am a owner of a digital marketing agency, and I am much involved with the social media and the digital world, so I would like to hear from first of all from the media perspective. So how social media has changed the business world and the people mindset in current scenario, ma'am? Okay. So first of all, what I would like to share is what is exactly social media. सोशल मीडिया है क्या? जब हम छोटे थे तो हमारे हाथों में किताबें होती थी, तो किताबें हमें वो शिक्षा देती थी, पढ़ाई देती थी. हम वही पढ़ के अपने स्कूल जाते थे और हम अपना एग्जाम्स वगैरह देते थे. उस वक्त हमारे पास कोई प्रेशर नहीं था, ना ही हमारे पास कोई कंपटीशन था. वी डिडंट हैव एनी कंपटीशन कि हमें ऊपर आना है या लड़ाई लड़नी है या हमें किसी वे में किसी को कॉम्पीट करना है. पेरेंट्स हमें जैसे वैसे पढ़ाते थे वैसे वैसे हम पढ़ते थे और वैसे वैसे हम एग्जाम दे के आते थे. अपनी अपनी काबिलियत पे हमारा जो भी एक परफॉर्मेंस होता था, वी यूज्ड टू हैव अ वेरी कल्चर्ड काइंड ऑफ बैकग्राउंड, और जिसमें कंपटीशन नहीं होता था, ना ही हमें इतना एक्सपोजर होता था बाहर की दुनिया का. तो जैसे जैसे हमारा जो जनरेशन है आगे बढ़ता गया, एडवांसमेंट होता गया, धीरे धीरे लोगों को पता चला ये फेसबुक क्या है, धीरे धीरे लोगों को पता चला ये सोशल मीडिया क्या है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी फेसबुक एक्चुअली क्या है. फेसबुक एक्चुअली एक तरह की किताब है. किताब इन द सेंस लोगों को सही तरह से उसको यूज करना नहीं आता है. इट इज अ काइंड ऑफ आई विल से अ डिजिटल अटैक. Yes. कि हम जा रहे हैं कश्मीर, तुम नहीं जा सकते हो, हम जा सकते हैं. हम जा रहे हैं यहाँ पे घूमने, तुम नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं. तो एक तरह का ये एक डिजिटल कंपटीशन हो गया है. सो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है
पहले ज़माने में आई थिंक 15 इयर्स बैक हम अपने बच्चे को मोबाइल 18-19 साल की एज में देते थे। जैसे जैसे हमारा जो जनरेशन है थोड़ा अनसेफ हो गया, थोड़ा पेरेंट्स थोड़े कॉशियस हो गए, पेरेंट्स थोड़े सेफ्टी बरतने लगे, तो धीरे धीरे पेरेंट्स और जल्दी देने लगे मोबाइल हाथ में। इससे क्या हो गया, 4 साल पहले चलते गए 19 साल के मोबाइल जब हम देते थे, आज हमारे 2.5 से 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो आप सोचो 2.5-3 साल के बच्चे में वो चीज है जिससे उसको कोई अंदाजा ही नहीं है कि इसमें क्या है, जिसका उसको कुछ नहीं मालूम है इसमें क्या है। Yes. कई बार पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए या अपने पास टाइम नहीं है वो बचाने के लिए अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और उनको ये लगता है कि मोबाइल देके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, विच आई फील इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। बिकॉज इससे माइंडसेट तो दूर की बात है, सबसे पहले हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। आज आप देखोगे 1-1, 1.5 साल के बच्चों में ग्लासेस आ रहे हैं, क्योंकि उनके ब्रेन का जो अपने आप जो काम करने का तरीका है, जो भगवान ने जैसे बनाया है, जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है, जैसे रब ने हमें बनाया है, वो उस तरह से चलता नहीं है। हमने उनको अर्ली एज में मोबाइल देख के इतना स्टैग्नेट कर लिया है कि बस वो वही दुनिया देखता है जो मोबाइल में उसको दिखती है। सबसे नंबर 1 वो है। नंबर 2, लैंग्वेज अच्छा कमांड नहीं है, लैंग्वेज का कमांड गलत है। हम स्कूल में सिखाते कुछ और है, बच्चे मोबाइल से एक्सपोज हो रहे हैं, सीखते कुछ और है। तो उसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, स्कूल की एक्सपेक्टेशन प्लस बच्चों का परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो ब्लेंड होके आ रही है, ये सारा एक तरह का गड़बड़ क्रिएट कर रही है। सो आई थिंक सोशल मीडिया बच्चों को तो देना ही नहीं है सबसे पहले, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ देना है। तो 8 साल की एज के बाद, तो 8 साल से तो पहले आपको देना ही नहीं है। पहले ज़माने में तो मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे, हम अपना टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, अपने आपस में जो भी दिनचर्या है वो डिस्कस करते थे, एक दूसरे को हम अपने को लर्निंग्स देते थे। आज वो कहाँ गया, आज वो मिसिंग है। आज पेरेंट्स थके हुए आते हैं, टाइम है नहीं, बच्चों को मोबाइल दे दो, बच्चा बिजी हो गया। बच्चे गलत चीज़ें सीख रहे हैं, गलत चीज़ें अपना रहे हैं। इससे हमारे जो जो ऑल अराउंड जो एक सेफ्टी मेजर है वो गड़बड़ हो गया है। तो हमारा ये एक मानना है कि एडल्ट्स को भी एक जी जी। एग्जाम्पल बनना चाहिए कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। अभी मैं फेसबुक को पर्सनल अपने आईडी के हिसाब से नहीं यूज करती हूँ, लर्निंग के हिसाब से यूज करती हूँ। हमें ऊर्जा बढ़ाना है, हमें लोगों को अवेयर करना है, कॉशियस करना है, जागरूकता बढ़ानी है, किसी वे में एडुकेशन जहाँ लैप्स हो रहा है उस तरह की शिक्षा देना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आज आपने कुछ डाला, जी जी। लोग ले तो लेते हैं, लोग आपको कहते तो है दैट वी आर विथ यू, वी सपोर्ट यू, बट उस सोशल मीडिया से क्या है कि उनको उसकी नॉलेज नहीं भी है, फिर भी वो उनके बादशाह या शहंशाह बन के बैठे हैं, जबकि उनका नॉलेज नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप सोशल मीडिया के एडिक्ट होना जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया को किस वे में यूज करना है ताकि आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। एट द सेम टाइम डोंट डिपेंड ऑन पीपल। आप सेल्फ लर्निंग के हासिल करो कि आप सीखो, कुछ थोड़ा सा सीखोगे तो बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन पीपल। अभी वर्ल्ड इतना एडवांस हो रहा है, एआई भी आ गया, और भी बहुत सारी चीजें आ गई है, इतना कुछ आ गया, तो आप सीखोगे नहीं जब तक अपने खुद से। बिकॉज देखो एडुकेशन तो सबके पास है, वी ऑल हैव एडुकेशन, वी ऑल हैव नॉलेज, आर वी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन द प्रॉपर वे? नो, वी आर नॉट। हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, और जितना ज्यादा हम एक्सपोज हो रहे हैं सोशल मीडिया, उतना हमारा ब्रेन की जो लाइफ है वो खत्म हो रही है। और जब ब्रेन की लाइफ खत्म हो जाती है, हमारी जी बॉडी के सारे सेल्स, टिश्यूज, फंक्शनिंग वो भी गिर जाती है। जहाँ 90-90 साल आदमी जिया करता था, आज 30-35 ईयर्स में गड़बड़ होने लगी हेल्थ वाइज। ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन जी हो जी। गया, फिर क्या क्या ऐसी बीमारियां आ रही है। तो आपके हाथ में सोशल मीडिया को आपको कैसे यूज करना है राइट वे में, फॉर प्रोडक्टिव यूज। मैं हमेशा कहती हूँ प्रोडक्टिव यूज। आप कॉपी मत करो किसी का, इनोवेशन को क्रिएट करो ना। इनोवेशन की हम बात करते हैं, सब करते हैं, पर इनोवेशन हो नहीं रहा है। एक दूसरे का कॉपी करना, एक दूसरे का कंटेंट लेना, एक दूसरे की टैलेंट को लेना और अपना अपना बनाना। तो आई डोंट थिंक तुम कहीं पे भी तुम्हारा कोई मतलब, यू आर नॉट लिविंग अ लेगेसी एट ऑल। आप लेगेसी कहाँ यस। छोड़ के जाओगे? आपने तो यहाँ वहां से लेके इकट्ठा करके कॉपी करके अपना बना दिया, और आप सोचते हो कि आपने बहुत महान काम किया है। आई डोंट थिंक दैट इज अ जस्टिस।
सो यस मैम, यू आर राइट कि इन अ सेंस कि अगर हम सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करते हैं तो ही हमारे लिए फ़ायदा मंद है। अगर हम बिल्कुल, इसको नेगेटिव वे में लेते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल, हमारी जी, जनरेशन्स को भी डिस्टर्ब करता है, और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो छोटे हैं, चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वो माँ-बाप को ही फ़ॉलो करते हैं। तो बिल्कुल। जब माँ-बाप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल में लगेंगे, तो बहुत सी डिज़ीज़ेज़, बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो क्योंकि रहे हैं। क्योंकि लेकिन कहते इसके हैं कि जब साथ-साथ जैसे आपने बात की कि प्रोडक्टिव वर्क की। जी, जी। हाँ जी, प्रोडक्टिव वर्क जो है वो तो एक्चुअली ये है कि हम जो है वो देखें कि किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे 90% या 95% लोग जो हैं वो सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में या बस टाइम वेस्ट के चक्कर में सोशल मेरा मीडिया तक मेरा पहुँचे हुए हैं। मेरा वो अभी तक हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ सके। एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज तो देखो, आपने एजुकेशन ली है, आपने नॉलेज हासिल की है, आपके अंदर वो एक एक पावरफुल वो कहते हैं ना ऊर्जा है कि आपको करना है कुछ, बट आप उसको स्टैग्नेट कर रहे हो, आप जो स्टॉप बटन है खुद ही दबा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट आप में इनोवेशन तो जीरो है ना। आप इनोवेशन तो यस, कुछ यस। नहीं कर रहे हो ना। इनोवेशन जब तक आप खुद नहीं यस। करोगे, अगर आप जैसे कोई आपका कॉपी करे या मेरा कॉपी करे, हमें तो पता चल जाएगा भाई यहाँ से कॉपी किया, पहले तो ये ऐसे नहीं थे, पहले तो इनका यहाँ दिमाग चलता भी नहीं था, अब चलने लगा है क्योंकि मेरा कॉपी किया है। कितना भी कोई भी कॉपी कर ले, वो आपके जैसा तो नहीं बन सकता है ना। ईश्वर ने तो सबको अलग बनाया, भगवान ने तो सबको अलग बनाया है ना। तो आई कैन नॉट से कि मैं अगर एक चीज चला रही हूँ तो आप भी वही चीज चलाओगे, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो तो हमारे हाथ में है ना। वो कहते हैं ना, ऐसे ये ही। दो इससे इससे दो कहानियां रिलेट करती है, एक तो खरगोश और कछुए की, के आलसी और जो भागता है जिसको पहले जीतना है, तो ये वही एक रेस हो गई, मैं पहले मैं पहले मैं पहले के चक्कर में इंसान अपनी जो पावरफुल जो कैपेसिटी है वो डिप्लीट करता जा रहा है। हम रिसोर्सेज की बात जी, जी। करते हैं, हमारे नेचर में इतने रिसोर्सेज है, तो हर एक चीज की अपनी एक कैपेसिटी है। ऐसे ही इंसान के अंदर भी एक कैपेसिटी है, पर अगर वो उसको डिप्लीट कर देगा दूसरों का कॉपी करके, तो आई डोंट थिंक आने वाले टाइम पे इनोवेशन हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे। जी, ऐसे ही है। जब तक हमारे बच्चे वो जर्नी ट्रैवल नहीं करेंगे, जहाँ मेहनत चाहिए, जहाँ हार्ड वर्क होना चाहिए, जहाँ रातों की नींद गंवानी चाहिए, जहाँ उनके अंदर अपने आप खुद में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए कि नहीं मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, मैं कैसे भी करके ये सीखूंगा, मैं कैसे भी करके अपने आप को काबिल बनाऊंगा, तब जाके वो जो सक्सेस अचीव करेगा ना, वो सक्सेस की जो अंतर मन की जो खुशी है ना वो अलग ही है। जी, मतलब ऐसे ही है। यू कैन नॉट मेजर द ग्रेविटी ऑफ दैट इज वेरी डिफरेंट। बट एक चीज़ इसके साथ-साथ ये भी है मैम कि अगर हमारा स्टूडेंट जो है या हम जो लोग हैं, वो अगर इसका पॉज़िटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, जैसे कि बिज़नेसेस जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया को लेके चलते हैं। जैसे हमारा ब्लिसव्यू है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वही सोशल मीडिया के लिए अच्छी-अच्छी क्रिएटिव डिज़ाइन्स बनाते हैं, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ एडिट करते हैं, अपने क्रिएटिव स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि अगर स्टूडेंट इसका पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ, इसको इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होते हैं वो अलग होते हैं। इससे हर एक इंसान जो भी फील्ड में है, चाहे वो बीकॉम में है, चाहे वो बीए में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, उसके अंदर किस चीज को जागरूक करने की जरूरत है, उस चीज को बाहर निकालो। हमारे ज़माने में एक वो होता था कि स्कूल में ही हमारा वो हो जाता था कि भाई हाँ ये बच्चे का साइंस में अच्छा है। तो जब एक पेरेंट को पता चल जाता है कि ये बच्चा साइंस में अच्छा है, तो पेरेंट को कोशिश करना चाहिए कि उसके उसी फील्ड में लेके जाए, क्योंकि वही फील्ड में वो आगे आएगा, ना कि उसको डाइवर्ट करे। तो बिजनेस करने के तरीके अलग है, लेकिन स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। आपको अगर स्ट्रेटेजीज नहीं आएगी तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ये लॉन्च किया और आपने इसका कॉपी कर दिया और इसका आपने कैसे भी करके वो ले लिया और आपने इनोवेट किया, तो आई डोंट थिंक बिजनेस की स्किल्स तो आप में है नहीं ना। आज आज अगर देखा जाए तो मैंने एमबीए नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो एमबीए में जो पढ़ाया जाता है वो सारे स्किल्स है। एमबीए में जो भी स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है वो सारे मेरे में नॉलेज है, बट एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं वो आना चाहिए ना। किसी का कॉपी करके तो तुम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। आपको क्या जी, करना जी। है, आपका जो विजन है, आपने जो एक
एक टारगेट सोचा है कि मैंने ये करना है, मुझे यहाँ अचीव करके जाना है और मुझे किसी भी वे में उसको हासिल करना है, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो डिपेंड करता है। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने कि हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके और नेगेटिव एस्पेक्ट सोशल मीडिया के। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि जो एक डिजिटल मार्केटिंग की वर्ड है, जो बिजनेसेस आजकल डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इधर आना चाहते हैं, वो कैसे ग्रो करेंगे? वो डिजिटल मार्केटिंग को कैसे सीख सकते हैं, या वो क्या चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केटिंग के ऊपर बोलूंगी, मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। तो मार्केटिंग को आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको क्या डालना है उसका कंटेंट परफेक्ट वे में आना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट डाल के आप बोल सकते हो कि मैंने ये फूड का वो कैफे खोला है और लोग आओ, ऐसे नहीं आते। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपके एरिया में किस चीज़ की कमी है, आपके एरिया में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो कहते हैं सप्लाई वर्सेस डिमांड पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी में सिखाया जाता है सप्लाई वर्सेस डिमांड। आप वही करते जाओगे जो दूसरे कर रहे हैं तो आप कहीं पे कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। आपको किस वे में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है वो आपके हाथ में है। किस वे में आपको जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो, जैसे आपको एक प्रोडक्टिव आउटकम देना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, रातों रात बैठ के आपके टारगेट करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ये सारे प्लान बनाने के बाद आपको प्लान ए का निकालना पड़ेगा, फिर प्लान बी का निकालना पड़ेगा। तब जाके देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो भी हमने प्लान बनाया ये वर्क हो रहा है कि नहीं। कई बार जरूरी नहीं होता है कि सारे प्लान सक्सेसफुल हो, ए फेल हो जाता है, बी फेल हो जाता है, सी फेल हो जाता है। तो ये चक्कर हो जाता है और उसके चक्कर में आदमी अपना जो एक जी, जी। हाँ, इसके इसमें चक्कर में जो एक्चुअली यही है कि जब हम अपनी लाइफ में जो है, जब हम आगे निकलते हैं, मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बताया कि हम बिज़नेस को देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो लेके चलें उसके साथ-साथ। तो अगर हम इस बिज़नेस मार्केटिंग को अगर हम देखें, करंट वर्ल्ड जो है वो उसमें सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर हम कंपनीज़ को देखें, तो बहुत से बिज़नेसेस ऐसे हैं जो कि एक बिज़नेस ऐसा है जो इसको के सोशल मीडिया जो बिल्कुल यूज़ नहीं करता, वो मैनुअली बंदों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और एक वो बंदा है जो कि अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करता है और सोशल मीडिया पे अपने पेजेस भी बनाता है, उसके प्रमोट भी करता है। तो हम ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आई है कि वो लोग वो बड़ी जल्दी वो ग्रो करते हैं, वो उनकी ऑडियंस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव उसका सोशल मीडिया का अगर यूज़ करना चाहें मार्केटिंग की एस्पेक्ट में, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगी अपनी नज़र से? सबसे पहले तो मैंने जो कहा था कि सोशल मीडिया एक्चुअली क्या है। सोशल मीडिया आपको अवेयरनेस हो जाए व्हाट इज इट एग्जैक्टली फॉर, अवेयरनेस के लिए है ना। अवेयरनेस का मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, द राइट वे आपको आना चाहिए। आप अगर अगर आपने कुछ डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ा है या आपने कुछ सोशल मीडिया का कुछ पढ़ाई की है, आपने सीखा होगा काफी सारी चीजें कि ये यस। किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। अला तो वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन जी, मेथड्स जी। आपको आने चाहिए। अगर आपको सिर्फ पेपर देने के लिए आपने पढ़ाई की, थ्योरी अपेयर करने के लिए कि मुझे इतने मार्क्स मिले और मुझे यही करना है, तो आपको नहीं कर पाओगे कुछ भी। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, कि ताकि आपने जो 2-3 लाइफ में जो आपने सोचा है करने के लिए वो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो प्लान वाइज या नहीं कर पा रहे हो, वो सबसे पहले मैटर करता है। बट इफ यू जस्ट वांट कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये कर लिया, मैंने तो सोशल मीडिया के जो भी पेपर होंगे उनके जो भी एडवर्टाइजिंग आई उसमें मैंने 100 आउट ऑफ 100 ले लिया, वो ही काफी नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लेना। वो आपने थ्योरी पेपर में मार्क्स लेने के लिए अपेयर किया है, पर वो 100 आउट ऑफ 100 आर यू एबल टू यूज दैट। आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नॉलेज है, वो आप यूज कर पा रहे हो रियल लाइफ में कि नहीं, ताकि आप कुछ कमा सको, कुछ इनकम सोर्स बना सको। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आई डोंट थिंक आपने जो भी ये थ्योरी के पेपर अपेयर किए या पीएचडी जो भी हासिल किए वो किसी भी वे में किसी भी काम आएगी। कहने को तो है पीएचडी इन दिस या बट मैम, ये इस चीज़ में मैं एक चीज़ इसको ये भी ऐड करूँगा कि अगर आप जैसे देखते हैं कि हमारा एशिया में ना एक बहुत ज़्यादा ये मसला पाया जा रहा है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारे स्टूडेंट सिर्फ़ ना ग्रेड्स की दौड़ में बहुत ज़्यादा हैं।
मार्क्स की दौड़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो आते हैं फील्ड में, तो फिर उनको पता चलता है भाई जॉब्स नहीं है हमारे अंदर, तो वो स्किल ही नहीं है जो मार्केट डिमांड कर रही है। तो स्किल को पीछे छोड़ा जा रहा है और मार्क्स को सिर्फ देखा जा रहा है कि याद कितना हुआ, कितने मार्क्स ज़्यादा आए। तो ये भी हमारी ऑडियंस को आज बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नाउ वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। वर्ल्ड ये देख रही है कि ये पर्सन हमारे लिए कैसे सूट करता है, ये हमारे लिए इसके पास स्किल कौन सा है और ये इसके अंदर टैलेंट कौन सा पाया जा रहा है। सिर्फ वो डिग्री, वो मार्क्स, ये आज हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताने की ज़रूरत है कि भाई अपने अंदर स्किल पैदा करो और इस फील्ड में आओ। और मार्केटिंग, जैसे आप बता रही हैं कि आजकल मार्केटिंग भी वो पहले वाली ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं रह गई है। आज जो है वो एडवर्टाइजमेंट का दौर आ गया, अवेयरनेस का दौर आ गया और सोशल मीडिया का दौर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे ऑडियंस इस चीज़ को भी जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बिजनेस किस स- तरीके से जो है वो शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल से डिजिटल। सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा था और सोशल मीडिया का मतलब, हाँ सबसे पहले तो मैंने यही कहा था। हाँ बोलिए सर, बोलिए, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एक्चुअली जाना चाह रहा था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक बिजनेस जो है, आप क्या समझती हैं कि एक बिजनेस जो है वो एक ब्रांड क्या कब बनता है? बिजनेस में और ब्रांड में क्या डिफरेंस है? क्या क्या वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि वो बिजनेस से ब्रांड बनते हैं? बिजनेस बिजनेस जो है वो आपका टारगेट है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप है। ये इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप लेनी है। बिजनेस आपने बनाया, हाँ मैंने इसमें बिजनेस बनाना है, ठीक है। अब वो बिजनेस को आप किस वे में कितने सारी चीजों में सेग्रीगेट करोगे, ये बिजनेस ये है, इसका मुझे क्या क्या आउटकम चाहिए वो आपको बनाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे टीचर ट्रेनिंग का देती हूँ, बुक्स एंड लिटरेचर का देती हूँ, पोएम्स का देती हूँ, लोगों को इंग्लिश की कम्युनिकेशन का है, इंग्लिश पे कमांड कैसे आना चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स भी है, अच्छे अच्छे फाउंडर्स भी है, अच्छे अच्छे लोग भी है, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग मैं जानती हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन में उनको वो बैकग्राउंड उनका देखा जाए तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वहाँ वो थोड़ा मार खा जाती है। कहने का तो वो बड़े हाईली क्वालिफाइड अचीवर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो कहने के लिए बड़े लोग हैं। बट आपका जब राइट टाइम आता है कि आपको कुछ बोलना है, कुछ कम्युनिकेट करना है इन द राइट वे फॉर द राइट पर्पस, उसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होगे। तो आपको सबसे पहले ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके नीचे आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, आपका टारगेट क्या है। अभी आप जो मार्क्स की बोल रहे हो, मार्क्स हमें सिर्फ कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं। मार्क्स हमें ऐसे ही है। सिर्फ मेडिकल सीट के लिए आता है, इंजीनियरिंग सीट के लिए आता है। उसके बाद आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट, किसी ने भी नहीं आपको पूछना है आपको किसी के मार्क्स कितने मिले। आपने वो मार्क्स हासिल करने के लिए, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपने वो मार्क्स को हासिल करने के लिए जो एजुकेशन लिया है, जो आपने लर्निंग लिया है, जो आपने ग्रोथ हासिल की है वो 4 साल में, नॉट इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज अ पर्सन, ग्रोथ एज एन इवॉल्व पर्सन, ये सारी चीजें ब्लेंड होके आपके मार्क्स काउंट करते हैं। सिर्फ आप इंजीनियरिंग में मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाए हो, पर आप लाइफ में 80 आउट ऑफ 80 नहीं कर पा रहे हो। तो आपने रटोफाई यस। करके रट रट के वो मार्क्स हासिल कर लिया, कोचिंग क्लास जा जाके आपने मार्क्स हासिल कर ली, बट अगर रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना है तो यू फॉल बैक जीरो, क्योंकि आपको आपने कभी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा है ना। कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं सीखोगे, एप्लीकेशन बेस्ड मेथड नहीं सीखोगे, तो उसका आप एप्लीकेशन रियल लाइफ में कैसे करोगे। अभी हमें बचपन से ऐसे ही पढ़ाया है। जाता है मैथ्स में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री इतना कुछ। आज 20 ईयर्स के बाद क्या ये ज्योमेट्री वगैरह काम आने वाला है? नहीं काम आने वाला है। आज ये ट्रिगोनोमेट्री काम आने वाला है अनलेस एंड until you take a particular field for that area. Either you become a professor of maths, either you become a lecturer of maths in a college. बट उसका और कितना मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है कि नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए मार्क्स के साथ, अपने डिग्री के साथ, वो तो तुम्हें लाइफ में अर्निंग देगी, ठीक है। आपके पास एक एक आपने एक सॉलिड बैकबोन बनाया कि हाँ मैंने ये डिग्री हासिल की है, कल अगर लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास ये डिग्री है कि मैं अगर किसी भी चीज में फेल हो गया, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद, बिजनेस में बोलो अदर वे में बोलो, तो यू स्टिल हैव दैट डिग्री के फॉल बैक अपॉन। बट आने वाले 15 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये डिग्री के साथ
मेरे हिसाब से 10 मोर स्किल्स हासिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप 10 साल बाद हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, अपने आप को स्टेबलाइज कर पाओगे। इकोनॉमी को स्टेबलाइज Yes, करने के ma'am. साथ साथ आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एप्लीकेशन, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब एक पैकेज बन के आता है, सिर्फ एक चीज नहीं आती है। और पेरेंट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट किसी भी बात. वे में पेरेंट्स को भी अवेयर जी. होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपके बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है, इंजीनियरिंग कराया, इंजीनियरिंग के बाद क्वेश्चन मार्क आता है क्या, फिर उसके बाद 2 साल कुछ और करेगा, फिर क्वेश्चन मार्क आता है फिर क्या, तब जाके उसके फ्रेशर की जो जॉब मिलती है जिसकी सैलरी भी इतनी नहीं होती, मेहनत के 10 साल सैलरी मिली बहुत कम, लेकिन हिज दैट सैलरी इनफ टू सस्टेन अ लाइवलीहुड? नो। तो आपको उस सैलरी के साथ आपने वो 10 साल जो मेहनत की है, जो सीखा एज अ पर्सन, एज अ स्किल डेवलप पर्सनालिटी, उसको आप किस तरह में एग्जीक्यूट करोगे, किस तरह से उसके अपने एंटरप्रेन्योरशिप निकालो, या अपना खुद का पब्लिक का कुछ भी खोलो, पर्सनल कुछ भी एक अपना कुछ सेटअप खोलो, जहां आप अपना जो पढ़ाई किए उसको भी एक आउटलेट दे दोगे, तो आपके पास एक और अर्निंग का इनकम सोर्स बनेगा। पर आप सिर्फ डिग्री पे यस, मैम. बैठोगे अच्छा, तो दैट इसके. इज नॉट इनफ। जी, जी. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एडिशनल स्किल्स जो हैं वो आज का नीड ऑफ टाइम है, और मैं चाहूँगा कि कुछ हम अपनी कन्वर्सेशन को बिजनेस की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी एजुकेशन को टच किया, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी. इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं कि आप एजुकेशन को तो इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपके जो है वो वहाँ पे अंबानी फैमिली हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे यानी कि बहुत वेल सेटल एंड एस्टेब्लिश फैमिली हैं मॉनिटरीली. एंड उनको मैंने देखा है, उनकी वीडियोस वगैरह देखी हैं कि वो अपने बच्चों को स्टार्ट से ही उनको जो है वो एक बिजनेस माइंडसेट देते हैं कि वो चीज़ों को लें, ग्रो करें, सेल आउट करें. स्टूडेंट को, बच्चे को प्रॉफिट एंड सेल का पता चलता है, और वो जब ग्रो होता है 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जब होता है, तो उसको बिजनेस की बहुत सी टर्म्स का पता होता है. जबकि हमारी ट्रेडिशनल जो स्कूलिंग है उसमें जो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, उनको बिल्कुल बिजनेस का 20 साल तक उनको बिजनेस का नो नॉलेज, दे डोंट नो व्हाट इज बिजनेस. कि हमारे जो सैलरी पर्सन, जो जॉब पर्सन लोग हैं हमारी वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, ईरान है, इराक, ये मतलब जितना ये मिडल ईस्ट भी है, या वर्ल्ड वाइड भी देखें, तो जो सैलरी पर्सन होंगे, जो जॉब माइंडेड लोग होंगे, उनकी एक अलहदा से थिंकिंग अप्रोच होती है. जबकि जो बिजनेसमैन होता है, वो मैंने एक बुक भी पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड की, जिसमें वो सारा एक साइड पे रिच डैड जो है वो बता रहे होते हैं बिजनेस फादर मैन फादर होता है, और पुअर डैड जो है वो एक सैलरी पर्सन होता है. तो हम क्यों ना अपनी जनरेशन को आज ये बताएं कि बिजनेस जो है वो किस तरीके से जो है वो इस टाइम पे एक्सपैंड कर रहे हैं, और उसमें डिजिटल वर्ल्ड का, सोशल मीडिया का क्या क्या रोल है, और किस तरह जो आजकल जो वीडियोस देखें, हर बंदा वीडियोस देखता है, हम भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो किस तरह वो वीडियोस जो हैं वो बिजनेसेस को प्रमोट कर रही हैं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है अपने ऑनलाइन बिजनेसेस भी क्रिएट करे. तो काइंडली यहाँ इसके पे मैं बारे में. सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप किसी का कॉपी मत करो, किसी को देखो मत, बिकॉज यू योर सेल्फ आर योर ओन हीरो। आप खुद ही एक हीरो हो अपने नज़र में, किसी को फॉलो मत करो। मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहे, सबने अपने फैमिली कल्चर में बहुत कुछ सीखा होगा, आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, हमने अपने एजुकेशन को, माइंडसेट को अप्लाई किया है। तो आप जहाँ पे हो, आप अपनी संगत अच्छी बनाओ, कंपनी अच्छी बनाओ। जब आप कंपनी अच्छी बनाओगे ना, तो उनके बीच जो बातें होगी, बिजनेस की बातें होगी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बातें होगी, वो हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिव वे पे। गलत संगत बनाओगे तो गलत चीजों में जाओगे, आप अच्छी संगत बनाओगे तो अच्छी चीजों में जाओगे। तो संगत का सबसे पहले यहाँ पे मायने रखता है। मैं बड़े लोग बोलो, छोटे लोग बोलो, मेरे नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, आप बड़े तभी होते हो जब आप एक अपना खुद का कुछ करते हो, खुद का यूज करते हो, एजुकेशन का, नॉलेज का अप्लाई करते हो उसको रियल लाइफ में, और अपने बल पे कुछ हासिल करते हो, किसी का बिना कॉपी किए। मैं ये नहीं कहती कॉपी मत करो, कॉपी मत करो, बट आइडियाज तो देखो ना कैसे लिए। जैसे आपने यहाँ से 10 आइडिया लिए, वहां से 10 आइडिया लिए, आपके दिमाग में क्या है, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, बिकॉज उनका विजन अलग था, आपका विजन अलग है। आपको आने वाले 15 साल बाद के लिए सोचना है,
वो 20 साल पहले सोच चुके 20 साल बाद का। आपको अभी इस जनरेशन के लोगों को आने वाले 15 साल बाद क्या होने वाला है, वो विजन को दिमाग में रखना है। आज हम एडुकेटर्स हैं, हमने 20 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि कोविड आएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ज़ूम से कनेक्ट हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट करके एजुकेशन अवेयरनेस करेंगे। बट हमारे अंदर वो एजुकेशन थी, वो नॉलेज थी, जिससे हमने अपना अप्लाई किया और आज हम यूज़ करके उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर वो नॉलेज यूज़ करने की क्षमता ही नहीं होगी और आप कॉपी करो, इसको देखो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी लोगों को आप अपना इंस्पिरेशन बना लो, रोल मॉडल बना लो या आपका हीरो बना लो, आपकी जर्नी अलग है, आपका विजन अलग है, आपका मिशन अलग है। आपने जिस काम के लिए पढ़ाई की है, आपका वो लाइफ में टारगेट क्या है, उसी टारगेट को पकड़ के आप अपने खुद के प्लान्स यूज करो, जगह जगह से पिकअप करके। अंबानी ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वी डोंट वांट दैट। वी डोंट वांट, वी ओनली वांट के लोग आपसे Yes. क्या सीखे और आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो रही है, वो आपको यूज करना है। ना कि किसी का कॉपी करके। कॉपी करके कोई कहीं नहीं पहुंचता है। कॉपी करके सबसे बड़ी बात, कोई कहीं नहीं पहुंचता है, वो वही का वही रह जाएगा। वो वही का वही रह जाएगा। फिर उसके 50 ईयर्स के बाद रियलाइज होगा, ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया, मैं शायद अपना ही खुद का कुछ कर लेता। तो दिस इज द राइट टाइम, आप अपना खुद का सोचो, अपना खुद का आइडिया इनोवेट करो, इम्प्लीमेंट करो। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, चौथी बार तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे ना। क्योंकि जितनी बार भी आप फेल होते हो, उतनी बार एक लेसन भी सीखते हो कि आपने गलती कहाँ की, कहाँ आप अपना थोड़ा विजडम अप्लाई कर सकते थे। तब जाके एक स्टेप आप लैडर पे पहुंच पाओगे। एक रातों रात तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप रात को बैठ के प्लान बनाओ, एग्जीक्यूशन करो, कैसे आपको करना है, कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है, आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है, किस तरह आपको अपना, सबसे बड़ी बात, इस चीज को आपको अपनाने के लिए अपने साथ किसी को मत रखो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ देता नहीं है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, nobody will be there with you। वो सब कहेंगे हम आपके साथ है, लेकिन आपके साथ कोई रहता नहीं। आपको खुद के बल पे करना है, खुद के करना है, खुद का सीखना पड़ेगा, खुद का इनोवेट करना पड़ेगा, खुद का लॉन्च करना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ जुड़े लोग 4 दिन आपके पास रह गए, 4 दिन आपके साथ रह के आपके सारे आइडियाज ले लेंगे, सारा आपका जो भी आपके प्लान है वो पकड़ लेंगे, और फिर खुद का अपना और 4 लोगों को मिलके उसके साथ शेयर करके अपना खुद का खोलेंगे। और ये आज का करंट है, आने वाले 10 साल बाद भी यही रहने वाला है। आने 10 साल बाद भी यही रहने वाला है। आप अपने बल पर, This अपने is so. कैपेसिटी पर। अच्छा, ये जो आप बात कर रही है ना, तो शुरू में मुझे लगा कि शायद मैम वैसे कोई बात कर रही हैं, इसकी इतनी शायद इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अब मुझे ना लिटरली फील हो रहा है कि दिट रियली मैटर्स के वी शुड नॉट कॉपी एनीवन। लाइक ये बहुत इस हमारी जनरेशन का ये मसला है कि अगर किसी को देख लिया कि भाई वो ये कर रहा है, तो सेम कॉपी किया और घर आके समझा कि अगर उसने जो जहाँ पे चाहे वो अगला 5 साल में पहुंचा है ना, तो हम उसको कॉपी करें और आज एक दिन में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो इसी तरह बंदा और ये अपने आप को और तो परेशान कर लेता है, लेकिन होता तो नहीं है। वो अगला तो 5 साल मेहनत करके उधर पहुंचे, आप 5 दिन और में ये तो नहीं जा फैक्ट है, सकते। ये ये फैक्ट फैक्ट है, है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। इसी के साथ मैंने कितने सारे इसी लोगों के को देखा है, मेरा मेरा खुद का काम को कॉपी करते हुए, कोशिश करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किस तरह से मेरा वर्क पैटर्न है, मेरा वर्क स्टाइल है, मेरा जो एग्जीक्यूशन का स्टाइल है, बहुत लोग कॉपी करते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहती हूँ करो, बट मेरा जो एग्जीक्यूशन करने का तरीका है, मैंने खुद हासिल किया, अपने बल पे हासिल किया है। अपने नॉलेज को, अपनी पढ़ाई को, अपनी थ्योरी को, अपने प्रैक्टिकल्स को, मार्क्स को, सबको ब्लेंड करके एक विजन बनाया, रातों की मेहनत की, बहुत सारी बुक्स मेरे हाथ में आई, मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, मतलब मेरे पास जो सालों का एक्सपीरियंस था, उसको मैंने पेन से जॉट डाउन किया। अब मुझे आगे 2 साल बाद क्या करना है, वो 2 साल सक्सेसफुल हो गए, अब आने वाले 5 साल बाद क्या करना है, रेडी रखो प्लान। एंड बिलीव मी, जब आप खुद के बल पे करते हो ना, आप सक्सेसफुल जरूर होते हो।
इसमें एक चीज़ मेरा, मैं यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैम, कि आज आपकी एजुकेशन की जो जर्नी है एज एन एजुकेशनिस्ट, और खुद भी आपने एजुकेशन हासिल की, राउंड अबाउट 30 ईयर्स आपको हो चुके हैं इस फील्ड में, और आपने राउंड अबाउट 150 प्लस अवार्ड्स भी आपने विन किए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे ऑडियंस के साथ एक शॉर्ट टाइम में, या एक इसको कह लें कि उस 30 साल की जर्नी को एक खुलासे के अंदर आप बयान करें कि आपने अपनी सक्सेस, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, किन हालात से गुजरे, और आज आप जहाँ पे पहुंचे हैं वो उस सारी जर्नी के बारे में जरा बताएं। एक्चुअली तो जर्नी मेरी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, और एजुकेशन में तो बहुत ही थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि टीचर भी रह चुकी हूँ मैं, एडुकेटर भी हूँ। मैंने फिर पैंडेमिक में रिसर्च वर्क किया है, अपने बल पे मैंने डॉक्टरेट हासिल की है, अपने रिसर्च वर्क को देख के लोगों को अवेयरनेस किया है, लोगों को जागरूक किया है कि किस तरह से होता है। बहुत सारे मेरे से पैंडेमिक में प्रिंसिपल्स कनेक्ट हुए, बहुत सारे फाउंडर्स कनेक्ट हुए, क्योंकि जब पैंडेमिक आया तो उनके पास कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना, सॉलिड हथियार नहीं था कि किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है अभी ऑनलाइन में। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन से मेरे साथ लोग जुड़े। फिर मैंने उनको अपना सेशन मैंने अपना बताए, अपने सेशंस किए, वर्कशॉप्स किए, उनको स्ट्रेटजीज बताई, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे मैं अपना काफ़ी कुछ करने लगी। मतलब मेरा एक ही जगह पे नहीं था, मेरा मल्टी डायमेंशनल था। मैं 15-20 चीज़ें एक साथ करती हूँ, मैं एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करती, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ों को रख के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे छिपी है और सामने नहीं आती है, जो किस तरह के एजुकेशन को एक बिजनेस बनाया गया है, किस तरह से एजुकेशन को कमर्शियल बनाया जा रहा है, वो चीज़ गलत है। हम बच्चों के लिए गलत चीज़ दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, तो विच आई फील इज़ नॉट हेल्दी आने वाले टाइम पे। बच्चों को आज हम देखो, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत इनोसेंट पैदा होते हैं, भगवान उनको यस दिमाग प्लीज। देता है, सब देता है। एज पेरेंट्स, एज एडुकेटर्स, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सही राह दिखाएं, सही राह पे चलना सिखाएं, सही चीज़ों पे चलना सिखाएं, ना कि अपना फायदा पहले सोचें। क्योंकि आप एक जीता जागता ब्रेन है आपके हाथ में, ह्यूमन ब्रेन है, उसको आप डेवलप कर रहे हो, उसको आप कुछ सिखा रहे हो। वो तो वही सीखेगा ना जो आप सिखाओगे। आप उसको गलत सिखाओगे तो वो गलत सीखेगा, आप उसको अच्छी चीजें सिखाओगे वो अच्छा सीखेगा। तो गलत चीजें सिखाई जा रही है, वो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जागृत करना तो मेरा काम है। गलत चीजें मत ऐसी है। डालो, गलत चीजें आप पेड़ पे गंदा पानी डालोगे तो पेड़ मुरझा जाएगा। जितना आप पेड़ों के साथ अच्छे से बात करोगे, प्यार मोहब्बत से बात करोगे, उनको संवारोगे, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं बायोलॉजी में, plants give us oxygen in during daytime, carbon dioxide at night, but are we actually taking care of plants? No, we are not, we are actually not. फिर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, the elephant helps us carry logs of wood from the forest. Are we protecting our nature? We are not. पढ़ाना और रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने, इम्प्लीमेंट करने में बहुत यस, अंतर है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आवर तो ऑडियंस ये दैट। सारी, हाँ, ये सारी चीजें मैंने जब देखा गलत हो रही है, और आप जो काम करते हो, किसी के लिए भी आप काम करते हो, किसी के अंडर, सामने इसमें वालों को, हाँ, जी जी, इसमें मैं बोले चाहूंगा बोले, कि अगर हम इसको दोबारा ऐसे, आवाज नहीं आ रही सर। यस, आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि जी जी, अब मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आई वुड लाइक टू आस्क कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि एजुकेशन भी एक बिजनेस की तरह चल रहा है, इसी तरह सेम हमारी कंट्री में भी ये मामलात हैं, ठीक है, और भी कंट्रीज में ये इश्यूज बन रहे हैं। तो इवन के दूसरे प्रोफेशंस जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि मेडिसिन हेल्थ का जो सेक्टर है, उसमें भी ये क्लेम्स होता है कि लोग जो है, वो जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो एक एक जो पर्सन होता है, प्रोफेशनल होता है, उसका जो भी कस्टमर हो, जो भी क्लाइंट हो, चाहे वो बिजनेस है या एजुकेशनिस्ट है या हेल्थ सेक्टर है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या जो कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है, उसको बिल्ड करना कितना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए फर्स्ट, या किसी भी सब प्रोफेशन के सब लिए। सबसे पहले आप जो भी स्किल बोलो, या आपने पढ़ाई बोलो, या एजुकेशन बोलो, या आर्ट बोलो, या आपके जो भी आपकी स्किल है, उसको एक प्रोडक्ट मानो।
अब आपके पास प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट को किस तरह से आपको लोगों को ओके, बताना है कि मेरा प्रोडक्ट क्या आपको आउटपुट राइट, देगा, आपको आउटपुट क्या देने वाला है। हम जब कोई भी पढ़ाई भी करते हैं ना, हम 2 चीज़ें सीखते हैं उसमें, एक लर्निंग आउटपुट, लर्निंग इनपुट और आउटकम। ओके, तो ये दोनों को हमको पैरेलल लेके जाना है। हमने ये चीज़ या ये पर्टिकुलर कोर्स जॉइन किया है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग टेक अवे क्या है और लर्निंग आउटपुट क्या है। ये तीनों चीज़ें अगर क्लियर हो गई ना, तो आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो या जो भी आपने कोर्स किया है 5-6 महीने का, 2 महीने का, क्या आपको जब आप वो इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप इस कोर्स को अच्छे से आप बता पाओगे कि आपने क्या पढ़ाई की है? 90% आज की जनरेशन बोलो, जो भी बोलो, वो फेल होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट बोलो या टेक्नोलॉजी बोलो, कंप्यूटेशन बोलो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही काफ़ी है। आप बनो इंजीनियर, डॉक्टर भी बनो, सब कुछ बनो, साइंटिस्ट भी बनो, बट उसके अलावा अपने पास 10 हथियार और रखो, जिससे आपको आपको एक तरह का एक अपना खुद का कुछ स्किल खोल सको, अपना खुद का पब्लिक सेटअप खोल सको। साथ में आप अपना एडुकेशन भी यूज़ करो, अपना जो भी आपको लाइवलीहुड अर्न करनी है या घर चलाने के लिए आपको जो पैसे कमाने हैं या जो भी करना है, इसके अलावा 10 स्किल्स आपको करनी पड़ेगी। वो 10 स्किल्स आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है। कोई आपको आके बताने वाला नहीं है और कोई अच्छा चाहेगा भी नहीं। तो आपको खुद का अपना वो कहते हैं ना, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि नहीं, मेरे अंदर ये है, क्या अगर मैं इसकी कोशिश करूँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे पास ए है, बी है, सी है, इन तीनों को ब्लेंड करके एक बढ़िया सा आप बनाइए। अच्छे लोगों को साथ लीजिए, अच्छे लोगों, गिने चुने लोग जिसके ड्रीम्स आपके जैसे, जिसका विजन आपके जैसे, आपका पॉजिटिव वे में सपोर्ट करेंगे, ना कि सिर्फ अपना खुद का पहले सोचेंगे। तो आपके साथ ये 2-3 जो लोग मिल लेकिन जाए इधर और एक सब। एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा। आप कह रही हैं कि हम उन लोगों को अपने साथ लेके चलें जिनके ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो मसला आता है कि हम जिस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं वहाँ पे ज्यादातर कम्युनिटी के लोग वो होते हैं जो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं या इतना वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते। तो हम अपने जो वो लोग जिनके ड्रीम्स हमसे मिलते हैं उनको कहाँ से फाइंड आउट करें? साइलेंट ऑब्जर्वेशन करो, साइलेंट ऑब्जर्वेशन करो पहले, साइलेंट ऑब्जर्वेशन करो। थोड़ी सी नॉलेजेबल बातें करके देखो कि वो आपके नॉलेज वाइज वो आपके लेवल पे जल होता है कि नहीं। आपको 1-2 सेटिंग में पता चल जाएगा कि वो आपके लेवल का है कि नहीं। उसकी लैंग्वेज से, उसके कमांड से, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, उसके बात करने के तरीके से, उसके तहजीब से, उसके मैनर्स से, उसके डिसिप्लिन से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसान की, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में अगर आपके पहले या दूसरे एक्सपीरियंस में गड़बड़ है, तो फिर इसका मतलब आपके साथ वो कहीं से भी वो जेल नहीं होने वाला है। इमीडिएटली छोड़ दो। ना उनसे कोई ड्रीम शेयर करो, ना उनसे कोई प्लान शेयर करो, ना ही उनसे कोई अपना जो भी आपका दिमाग में है, आपको लाइफ में क्या करना है, वो शेयर करो। अगर आपने थोड़ा सा भी बता दिया ना, वो और 4 लोगों को बताएगा, वो और 4 को बताएगा, वो अपना ही सोचेगा। आपका तो वो सोचेगा ही नहीं, आपको ज़ीरो लेवल पे आओगे। तो ये चीज़ें आपको खुद को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो साइलेंट ऑब्जर्वेशन से होता है। साइलेंस जो होती है ना, जो शांत दिमाग जो होता है, वो ये चुपचाप पहले ऑब्जर्व करता है। 99% आज के पॉपुलेशन में आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को बड़े गुरु और शहंशाह समझते हैं, जबकि वो है नहीं, जबकि वो है नहीं, ऐसे ही है, रेशियो ज्यादा जबकि है वो उन है। लोगों की। बिल्कुल, ऐसे ही है। उनको ऐसे लगता है कि वो ये पद हासिल करके वो देश के गुरु बन गए हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये, बट कमांड एक आना चाहिए, कमांड आना चाहिए। आपको स्कूल का बोलो या कहीं का भी बोलो, आप में अगर अप्लाई करने की स्किल्स नहीं है लाइफ में, अच्छी जागरूकता पैदा करने की स्किल्स नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करने की स्किल्स नहीं है, लोगों को सही राह दिखाने की स्किल्स नहीं है, आप जो सीख आपने आपको अगर किसी ने गलत रास्ते पे डाल दिया, आप अपने आप बाहर आए उस रास्ते से, तो आप लोगों को भी जागरूक कराओ कि कैसे आना है बाहर। ना कि आपने, क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया, आप 4 और लोगों के साथ गलत करोगे, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। तो अगर आपके साथ यस। ऐसा हुआ है, तो आप लोगों को जागरूक कराओ, अवेयर कराओ, अपने एजुकेशन को अप्लाई करो, नॉलेज को अप्लाई करो। वो कहते हैं ना, इंसान का दिमाग इतना अच्छा है कि वो सब कुछ सुनता है, देखता है, भूलता है, महसूस भी करता है, बट हम उसको अप्लाई नहीं करते बराबर।
हम उसको अप्लाई बिल्कुल अच्छे से नहीं करते, गलत चीज़ों में, गलत ये हमने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक में, हमें व्यूज़ आए नहीं, डिप्रेशन हो गया। हमने एक चीज़ डाल दी, ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, प्रॉब्लम हो गई। आप व्यूज़ के लिए क्यों डिपेंड करते हो? आपने डाल दिया, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, कर लिया, दैट इज़ इट। डोंट वेट फॉर व्यूज़। तो व्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स ये मैटर नहीं करता है। आप क्या काम कर रहे हो, वो सामने सोसाइटी में बोलो या कहीं पे भी हो, वो टेलीकास्ट होगा या जाएगा, वो सामने वाला कोई एक बंदा किसी चीज से गुजर रहा हो, आपका सुन के अगर उसकी मोटिवेशन मिलता है, उसके थोड़े स्ट्रेटजीज आते हैं, वो कुछ सीखता है, क्योंकि आप खुद भी एक किताब जैसे ही होते हो ना। किताबों से बढ़कर तो मैं मानती हूँ इंसान ही किताब है। तो आप अगर अपनी इंसानियत को अच्छे से यूज करोगे, अच्छे से अप्लाई करोगे, लोगों में अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में जागरूकता फैलाओगे और लोगों को वाकई में एम्पावर करोगे, तो डेफिनेटली 2-4 लोग तो सच्ची में एम्पावर होंगे, जिनको आपने सही मार्ग दिखाया ही होगा। और ऐसे ये ही है। हुआ है, ये हुआ है, जी, मेरे से ऐसे ही है। करोड़ों लोग एम्पावर हुए। ऐसे ही है। अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल इफ वी स्ट्रगल। और इसके साथ देखें, हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, अगर हम देखें तो हमें फिर भी, अगर हम इतनी कोशिश करते हैं तो हमें इसके साथ साथ ऐसे सोसाइटी में लोग मिल जाते हैं जो कि एक जगह पे आपका पॉजिटिव रोल आपके साथ प्ले करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो 100 में से 2 क्यों ना हो, चाहे वो 50 में से 1 क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। हमें चाहिए फिर हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ें और अपने सक्सेसफुल करियर को आगे लेके चलें, जैसे आपने बताया। और मैं चाहूँगा इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट के ऊपर जो है वो हाईलाइट ज़रूर करें कि वो लोग जो 99% हैं या बहुत कम हैं वो लोग जो कि आपके माइंड के साथ मैच भी नहीं करते, और वो लोग भी उनमें से होते हैं जो कि आपकी सक्सेस में हर्डल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन दे फाइंड के दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल लाइक यू, they try to make you down somehow, they try their level best to do that। ऐसे लोगों को अवॉइड करने का क्या तरीका है, वो भी जरा बता दें। सबसे सबसे पहले तो आपने जो बात कही है, मैं कहना चाहूंगी कि 100%, 90% भी नहीं, 100% देयर आर पीपल हु विल नेवर बी विद यू। और उसके लिए वेट मत करना कि कोई एक शख्स आ जाए, कोई नहीं आएगा। आप खुद इतने सक्षम हो, इतने काबिल हो, आप अगर अकेले पे फोकस करोगे ना, आपको क्या करना है, आप 100 के बराबर हो जाओगे। So don't wait for people to come and help you. Don't wait for people to come and guide you. 99% क्या 100% नहीं होंगे, सब आपके फ्रेंड्स है, सब आपके फेसबुक फ्रेंड्स है, सब आपके वेल विशर्स है, सब है। वो सिर्फ फेसबुक तक ही है, वो सिर्फ फेसबुक तक ही है। आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो, क्या तकलीफ है आप महसूस कर रहे हो, उसको आपको ही चैनलाइज करना है, नहीं आने वाला है कोई भी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन वेटिंग फॉर दैट 1%। वो 1% भी जो आप बोलो, मैं तो 100% के टॉपिक चलो छोड़ दिया, अब 1% पे आती। वो 1% जो है, वो 1% भी कभी न कभी तो आपको धोखा तो देके ही जाएगा। 6 साल आपके साथ बिता अच्छा। के भी, 6 साल आपके साथ बिता के भी 7वें साल पे तो वो धोखा देके ही जाएगा। 6 साल आपसे सब कुछ सीख लिया, सब आइडिया ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब वो जाके अपनी जगह पे यूज करेगा और वहां का वो शहंशाह भी बन जाएगा। लोग उसको माला भी पहनाएंगे, लोग उसका वेलकम भी करेंगे, लोग उसको गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाएंगे, चीफ गेस्ट भी बुलाएंगे, क्योंकि वो आपसे सीख के गया है, आपके साथ दोस्ती करके वो वहां करके गया है। आप आपने ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना, गलत काम उसने किया। तो डोंट वेट फॉर पीपल। आप अपनी एजुकेशन यूज करो, अपनी नॉलेज यूज करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, अच्छे लोगों का सपोर्ट लो। बिकॉज मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, मे बी मैं थोड़ी अनफॉर्चुनेट रही होंगी, पर है 1-2 जन ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और मैं प्रे करूंगी आपको मिल जाए अच्छे लोग, ताकि आपका जो विजन है, मिशन है, आपको मिल जाए। जरूरी नहीं है हर एक को मिलता है, पर अगर नहीं भी है यस। ना, अगर नहीं भी है, आप खुद इक्वली 100 के बराबर हो। एक एक अकेला नंबर होता है, जब आज के आगे 2 शून्य लगा दो वो 100 हो जाता है। ऐसे ही है। 2 जीरो निकाल दो तो अकेला रह जाता है। तो 2 ऐसे ही शून्य से ही वो 100 हो जाता है। तो आप अपने अंदर 100 स्किल्स डेवलप कर लो, 100 नॉलेज हासिल कर लो, अप्लाई करो, बैठ के मेहनत करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। फेल भी हो जाओगे चलेगा, फेलियर से डरना नहीं है सबसे पहली बात।
फेलियर सबसे बड़ी टीचर है जो आपको लेसन्स भी देगा, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको इवॉल्व भी करेगा और आपकी एडुकेशन अपने आप बढ़ाएगा, जो आपने कभी जिंदगी में सीखी भी नहीं होगी, जो आपको कभी बुक्स से भी सिखाई नहीं होगी। आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस, फेलियर आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा, लोगों के बारे में अपने आप बता के भी जाएगा। सो दिस इज व्हाट मैंने अपने लाइफ से सीखा है, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो अपने बल पे हूँ। मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं किसी को थैंक यू भी बोलूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं किसी का शुक्रिया भी करूँ, क्योंकि कोई था ही नहीं। जो भी मैंने पाया अपने बल पे पाया, अपनी काबिलियत पे पाया। बहुत शुक्रिया आपने अपना इसको एक्सप्लेन किया। इसमें अभी हमारे पास ऑडियंस में एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके हाँ, साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी है। हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो हमसे अभी मैम से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में वो जो है वो क्वेश्चन दे सकते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं। मैम, हमारी ऑडियंस का ये क्वेश्चन है, अवर एजुकेशन सिस्टम कैन प्रोड्यूस हाईली क्वालिफाइड पीपल विद वीक कम्युनिकेशन स्किल्स and how can we a person with on that how can a person work on that gap practically कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम से लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा स्किल्स में इशू होता है, तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं? अगर वो क्वालिफाइड भी हैं तो वो कैसे उसको बेहतर करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है मेटामॉर्फोसिस, वो इसी चीज के ऊपर है। आप आप प्लीज इसके कॉन्टेस्ट में ऊपर थोड़ा पार्टिसिपेट, हाँ, कॉन्टेस्ट कि में वो अपने पार्टिसिपेट कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को अ, इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, जैसे जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप सुनोगे अच्छी चीजें, लिखना शुरू करो। अपने साथ एक बुक और पेन हमेशा रखो, बुक और पेन हमेशा रखो, बिकॉज उससे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टूल है ना, उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। बिकॉज कई बार हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, वाईफाई नहीं होता है, टेक्निकल गिल्चेस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लैपटॉप नहीं चलता, कभी फोन नहीं चलता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं। एडवांस है टेक्नोलॉजी तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो बुक और पेन है वो हमेशा 24 घंटे अपने पास रहती है। आप लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, अपना एक जर्नी को लिखो, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखो, दिन में आपने क्या किया उसको रीड करो। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आप अपने आप ही देखते जाओगे आपकी कम्युनिकेशन कितनी पॉलिश हो गई। और जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ पार्टिसिपेट करो, मौके गवाओ मत, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है अवेल करो। ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि जजमेंटल है लोग, कोई बात नहीं। दो 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 चार लोग हंसेंगे, हंसने दो, पांच छह हंसेंगे, हंसने दो। आपको अपने पे फोकस करना है, आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। जब इंसान को किसी भी चीज को अपने आप को पॉलिश करवाना है ना, उसको किसी न किसी वे में थपना पड़ता है। तो ये आपको थपना पड़ेगा। आपको कहते हैं ना, जब तक सोना अग्नि में थपे ना, वो उसकी चमक बढ़ती नहीं है। तो आपको तपना पड़ेगा, थोड़ा आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को लेना पड़ेगा हाथ में और अपने स्किल्स को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप सीखोगे। दिस इज द ओनली वे टू एम्पावर योर ओन सेल्फ। बहुत कम लोग मेरे जैसे होंगे आज कि जी, आपको थैंक यू। वाकई में पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच देंगे। 90% तो नहीं होंगे। तो जो दे रहा है उनसे सीखो, उनसे उनकी उनके कैसा काम करने का तरीका है उनसे सीखो। ऑटोमेटिकली एक एक दो 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 परसेंट आप जब सीखते जाओगे ना, आप खुद ही 100% कैपेबल हो जाओगे। यस, श्योर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं मैम आप मौजूद हैं तो मैं आपको एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हमारी ब्लिस व्यू क्रिएटर्स एज इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इसमें हम हमारा एक टीचिंग का एक सिनेरियो भी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है नए इनटेक होने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो अपने साथ शामिल करते हैं। उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एआई के करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको हम स्किल्स भी सिखाते हैं। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या आपके रेफरेंस से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनके जो भी आप अपने बैच का एक टॉपर स्टूडेंट देखती हैं जो हम जो है आप समझती हैं कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है और ये आईटी के स्किल्स को सीखना भी चाहता है, तो वो अगर हमारे पास आएगा और आपका कहेगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक स्किल्स उसका स्किल्स सिखाएंगे, जस्ट आपके रेफरेंस से अगर आता है तो। और ये जो है स्पेशल आपके लिए है। आप हमें टाइम दे रही थैंक हैं यू। और हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशल जो है वो उनको गाइडेंस दे रही हैं। और ये आज का जो मैंने सोचा था कि हमारा टॉपिक इस तरह चलेगा, इस तरह जाएगा, उससे मुझे 10 टाइम बढ़ के मुझे जो है वो नॉलेज मिला।
आपने उन चीज़ों को टच किया जो कि हम लिटरली इन टॉपिक्स को जो है ना कई दफ़ा डिस्कस करना तो चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए कि हेजिटेंट कोई होते हैं। बंदा हाँ, हेजिटेट करते हैं कि कोई हमारा सुनने वाला बुरा ना मना जाए, वो अपने ऊपर बात ना ले जाए, तो हम इन टॉपिक्स को मेरा डिस्कस नहीं मेरा करते। मेरा मेरा यहाँ पे था कि एक तो सबसे पहली बात तो है कि मेरे को कोई डर नहीं है किसी को बुरा कहने, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। अगर लोगों ने किया है मेरे साथ तो मैं कभी किसी को अटैक नहीं करती। मैं जनरल कॉन्सेप्ट में बात करती हूँ, जनरल वे में बात करती हूँ। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैं लोगों को जागृत कराती हूँ इनडायरेक्ट वे में। मैं किसी को भी पर्सनल अटैक नहीं करती। मुझे पता है, उनका भी पता होगा, बट हम अगर एडुकेटर्स इन सारी चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में अगर हम लर्निंग देते हैं, एडुकेशन एम्पावर करते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि किसी को पर्सनल अटैक ना करें, जाके लर्निंग पिकअप करें, लेसन पिकअप करें। वो कहते हैं ना, जो बात गुजर गई, आप उससे उससे लेसन क्या सीखा वो पिकअप करो। वो लेसन आपके काम आएगा, ना कि वो इंसान काम आएगा जिसने आपके साथ गलत किया है। तो वो इंसान तो करके चला गया, लेकिन आप क्यों उसके उसमें बैठे हो? आप अपना आगे बढ़ो, 2-4 स्टेप आगे बढ़ो। वही आपकी सीख है, वही आपकी लेसन है, वो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बुरा माने या नहीं माने, किसी को लगे भी, क्योंकि मैंने अपने बल पे हासिल किया जो भी हासिल किया है। तो अब उस खुदा का जो है थैंक यू है, उस रब का थैंक यू है, आज वो मेरे साथ है, मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं अपने बल पे कुछ हासिल कर पाई। थैंक यू। जी, जी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल एक लाइफ़ गुज़ार रही हैं और करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप जो है वो अपने जो है वो रहनुमाई प्रोवाइड कर रही हैं, अपने नॉलेज का बता रही हैं और आज आपने हमें पाकिस्तान में यहाँ पे ब्लिस व्यू क्रिएटर्स को टाइम दिया। हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह की रहनुमाई और फ्यूचर में भी जो है वो आपके ज़रिए से, आपके ताउन से हम करते रहेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं इनके माइंड्स ग्रो हों, इनको नॉलेज मिले, ये अच्छे रास्ते के ऊपर पढ़ें, पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचें, अपने माइंड को ग्रो करें, अपनी हमारा जैसे कि हमारा टॉपिक था कि वो डिजिटल रियलिटी को समझें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया को समझें और अपने माइंड को रिवाइर करें कि वो कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं और एक अच्छे इंसान बन के अपने गिरदोनवा में जो भी लोग हैं उनका ख्याल करें और उनके लिए बेहतरी का बायस बने। तो आज हमारा टॉपिक आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा रहा। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम जो है वो मज़ीद अच्छा इस तरह चलते रहेंगे। तो हम अपने ऑडियंस की तरफ से हमारा मज़ीद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपने जो है वो इस पॉडकास्ट को क्लोज़ करते हैं। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच जी ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।